Hello students, how are you? Hope you all are fine and you are doing your work properly at your homes. So students, in the last video we have discussed about the different types of habitats. In that video we have discussed about the aquatic habitat and terrestrial habitat. Okay. What is aquatic? Aquatic means related to the water. It means the animals that live in water and the place where the animals live in water. Okay? वो place जहाँ पे animals हैं वो पानी के अंदर रहते हैं. That is aquatic habitat. और terrestrial means land. The animals that live on land are called terrestrial, and the habitat where the terrestrial animal lives is called as habitat. Terrestrial habitat. Okay? In this video we will discuss about the adaptation. In this video we are going to discuss about the adaptation. So first of all we have to know what is adaptation. किसको बोलते हैं adaptation? Adaptation means a permanent change. That occurs or introduced in the body of an organism which help them to survive in its environment or in its surrounding. वो परमानेंट चेंज जिसकी वजह से कोई भी एनिमल किसी भी हैबिटेट मीन्स जहाँ पे वो रहता है उस सराउंडिंग में वो सर्वाइव कर सके, दैट इज कॉल्ड एज द एडेप्टेशन. ओके, द चेंज that is, or we can say the permanent change that occurs in the body of an organism which help to survive the organism in its surrounding is called as the adaptation. Okay, suppose human lives on land and fish lives in water. फिश कहाँ पे रहती है, कहाँ रहती है, वाटर के अंदर, और ह्यूमन लैंड पर. ओके, it means the human body is adapted to live on the land but it is not adapted to live in water. ह्यूमन बॉडी के अंदर एक ऐसा चेंज हो चुका है जो इसको लैंड के ऊपर सर्वाइव करने में हेल्प कर सकता है, बट इट कैन नॉट लिव इन वाटर. बट द फिश लिव्स इन वाटर एंड इट कैन नॉट लिव ऑन लैंड बिकॉज द फिश इज अडेप्टेड टू लिव इन वाटर एंड इट इज नॉट अडेप्टेड टू लिव ऑन लैंड. फिश के अंदर जो अडेप्टेशन हुई है वो उसको वाटर के अंदर सर्वाइव करने में हेल्प कराती है, और जो ह्यूमन के अंदर जो अडेप्टेशन है वो उसको लैंड के ऊपर रहने में सर्वाइव कराते हैं, लैंड के ऊपर सर्वाइव करने में हेल्प करती है. ओके, होप यू विल गेट द आइडिया अबाउट अडेप्टेशन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन. मींस द हैबिटेट्स आर ऑफ मेनली टू टाइप्स, aquatic and terrestrial. Then the adaptation will also be in the aquatic habitat or aquatic adaptation and terrestrial adaptation. Okay, so these are the two main types of adaptation. First we will discuss about the aquatic. Aquatic means the animals that live in water are called aquatic animals, and the changes that help them to live in the water is called as aquatic adaptation. Suppose we take the example of fish. Fish के example हम लें तो what are the different changes that help them to live in the water? वो कौन कौन से changes हैं जो fish को water के अंदर रहने में survive करने में help करते हैं? First is streamline body. Second is gills. Third is fins. And fourth is scaly. And these are the different changes which help them to live in the water. What do we mean by streamline body? Streamline body is the body that reduces the friction
बिटवीन द वाटर एंड द बॉडी। जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उससे क्या होता है कि जो फिश की बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन होती है, और इसका बेनिफिट क्या होता है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस, इट रिड्यूसेस द फ्रैक्शन, it reduces the friction between the water and the body so that it can easily swim in water। ये वाटर के अंदर बॉडी से वाटर के बीच में फ्रैक्शन को कम करती है। क्या, स्ट्रीमलाइन शेप, जो स्ट्रीमलाइन शेप है वो फिश की बॉडी से वाटर के बीच में जो फ्रैक्शन उसको कम करती है, जिसकी वजह से इट कैन इजीली स्विम, आसानी से तैर सकती है। सेकंड इज गिल्स। गिल्स आर द स्ट्रक्चर विच हेल्प देम टू ब्रीथ इन द वाटर। गिल्स की हेल्प से वो वाटर के अंदर ब्रीथ कर सकती है, नीचे जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो इसको प्रोवाइड कराती है। ठीक है। व्हाट आर द फिन्स? फिन्स आर द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प देम टू स्विम इन द वाटर। ये वाटर के अंदर इनको स्विम करने में हेल्प करती है। दिस फिन्स हेल्प देम इन स्विमिंग एंड द टेल फिन्स हेल्प देम टू चेंज द डायरेक्शन। वो डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करती है। स्केली एंड स्लिपरी बॉडी इज ऑल्सो यूजफुल फॉर देम। ओके, जो स्केली और स्लिपरी बॉडी है वो भी इनको पानी के अंदर रहने में और सरवाइव करने में हेल्प करती है। ओके, बिकॉज इट इज द वाटर प्रूफ स्ट्रक्चर। जो स्केल्स होती है वो वाटर प्रूफ स्ट्रक्चर होती है इसकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, उनकी वजह से इनकी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्शन मिलती है। दिस प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम द डैमेज। इनकी बॉडी को डैमेज होने से भी प्रोटेक्ट करती है। दिस इज द एडेप्टेशन इन द aquatic animals, or we can say aquatic adaptation. Now we will discuss about the terrestrial adaptation. Terrestrial adaptation, what it means? It means the animals that live on land and the land is their habitat is called as the terrestrial animals, and the adaptation that are acquired by the terrestrial animals is called as the terrestrial adaptation. Okay, now we have discussed the different types of habitats on the terrestrial. What are these? They are mountains, desert, boreal forest, temperate forest, grassland. These are the different types of adaptation in terrestrial adaptation. Okay, ये जो terrestrial adaptation है उसकी different forms ये होंगी: mountain adaptation, desert adaptation, boreal adaptation and temperate adaptation and grassland adaptation. The first type is in tropical rainforest. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो पेड्स हैं या फिर ट्रीज हैं या फिर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या अडेप्टेशन होती है, क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है जो उसमें सरवाइव कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज टाल ट्रीज फॉर्म्स डेंस कैनोपी व्हिच प्रिवेंट्स सनलाइट टू एंटर ट्री गेट एक्सेस रेन वाटर। जो टाल ट्री होते हैं, जो लंबे पेड़ होते हैं, वो क्या बनाते हैं, कैनोपी बनाते हैं। ठीक है, कैनोपी मीन्स जो ऊपर वाली है स्ट्रक्चर, इस तरह से कैनोपी बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर सनलाइट एंटर नहीं कर पाती है। क्या नहीं कर पाती है? सनलाइट एंटर नहीं कर पाती है। ड्यू टू व्हिच व्हेन द रेन कम्स एंड द रेन वाटर गोज इन द ट्रीज देन दे गेट सफिशिएंट वाटर। जब उनमें रेन आती है और रेन का वाटर उनके अंदर जाता है पेड़ों के नीचे, तो वो ज्यादा अमाउंट में रेन वाटर लेते हैं, क्योंकि वहां पे सनलाइट नहीं जाती, इसलिए वाटर एवोपरेट जल्दी से नहीं हो पाता है और वो उनको ज्यादा अमाउंट में वाटर मिलता है। ठीक है, लीव्स आर लार्ज हैविंग टिप्स कॉल्ड ड्रिप टिप्स। जो लीव्स होती है उनकी लार्ज होती है। ठीक है, और उनके अंदर क्या होता है, स्पेशल टिप्स होती हैं। ठीक है, और वो टिप्स क्या कहलाती है, ड्रिप टिप्स। क्यों? क्योंकि when the rain water falls on these tips or these leaves, then the rain water get dropped down. जो ये रेन वाटर है वो नीचे गिर जाता है। That's why they are called specialized. They have the specialized tips. Okay? इसलिए उनके अंदर क्या होती है, स्पेशल टिप्स होती हैं। और इससे की वजह से क्या होगा कि जो रेन वाटर उनके ऊपर गिरता है तो वो ज्यादा अमाउंट में वाटर इकट्ठा नहीं कर पाती और गलने से बच जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लीफ इंसेक्ट चेंजेस इन शेप ऑफ लीफ।
जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी वेरिड वैरायटी ऑफ एडेप्टेशन देखने को मिल सकती है, बिकॉज जो लीफ इंसेक्ट होता है वो किसकी शेप ले लेता है, लीफ जैसी शेप ले लेता है, ठीक है। एंड इट्स प्रिवेंट्स द चांसेज ऑफ प्रे। इससे ये क्या होता है कि इसके जो चांसेस हैं प्रे के, कि इसको कोई शिकार बनाए, वो कम हो जाते हैं, क्योंकि ये शेप किसकी जैसे लेता है, लीव्स की, और उन्हीं के अंदर क्या हो जाता है, छिप जाता है। इट गेट्स हाइड इन द लीव्स, ये छिप जाता है इनके अंदर, इसलिए इसके शिकार होने के चांस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है अडेप्टेशन इन टेम्परेट फॉरेस्ट। जो टेम्परेट फॉरेस्ट होती है, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहाँ पे क्या होता है, टू अवॉइड कोल्ड डिसीडियस ट्रीज सेट देयर लीव्स। और डिसीडियस ट्रीज क्या होते हैं, द ट्रीज विच गेट और विच सेट्स देयर लीव्स इन अ ईयर, कि एक ईयर के अंदर जो अपनी ईयर्स को सेट ऑफ कर देते हैं, मीन जो अपनी लीव्स छोड़ देते हैं, जिनसे लीव झड़ जाती हैं, वो कहलाते हैं डिसीडियस। तो वो प्लांट्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, दे कोल्ड से बचने के लिए दे सेट दे लीव्स, अपनी लीव्स को सेट कर देते हैं, मीन्स गिरा देते हैं, जिससे वो कोल्ड से बच सके, ठीक है। देयर लीव्स आर थिन एंड ब्रॉड। उनकी जो लीव्स होती है वो थिन होती है, पतली होती है, लेकिन चौड़ी होती है। ड्यूरिंग विंटर सम एनिमल्स माइग्रेट टू वार्मर प्लेसेस और हाइबरनेट। जब विंटर आती है तो विंटर के दौरान क्या होते हैं, जब कोल्ड ज्यादा बढ़ जाती है तो जो एनिमल्स होते हैं दे गेट हाइबरनेट। हाइबरनेशन मीन्स द लॉन्ग विंटर स्लीप, मीन्स जब विंटर के टाइम में जब कोई भी एनिमल लंबी स्लीप के लिए चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइबरनेशन, ओके। वन मोर इज देयर एस्टिवेशन, दिस टर्म इज आल्सो हियर। एस्टिवेशन इज लॉन्ग समर स्लीप, मीन्स जब समर के दौरान ज्यादा गर्मी पड़ती है, उसके दौरान जब एनिमल्स हाइबरनेट छिप जाते हैं कहीं जाके, तो वो क्या कहलाती है, एस्टिवेशन कहलाती है। मीन्स जब लंबे टाइम के लिए वो बाहर नहीं निकलते हैं तो वो एस्टिवेशन कहलाती है। और विंटर टाइम में जो होती है वो क्या कहलाती है, हाइबरनेशन कहलाती है, ओके। सो दीज आर सम एडेप्टेशन इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड द टेम्परेट फॉरेस्ट। नेक्स्ट टाइप इज बोरियल फॉरेस्ट एडेप्टेशन। मीन्स जो बोरियल फॉरेस्ट होते हैं उनके जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनके अंदर कैसे एडेप्टेशन होती है। सो दे हैव कॉनिकल शेप। उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, कॉनिकल होती है। मीन्स जब स्नो का टाइम होता है तो उनकी शेप कॉनिकल होती है, और ये शेप उनको क्या करती है, दे शेप हेल्प देम टू प्रिवेंट द डिपोजिशन ऑफ आइस ऑन देम। उनकी जो सरफेस होती है, लीव्स होती है, उनके ऊपर आइस की डिपोजिशन को प्रिवेंट करती है। अगर आइस डिपोजिट होती है तो वो स्लिप डाउन कर जाती है नीचे, ओके। सो दे हैव द कॉनिकल शेप। नीडल लाइक लीव्स प्रिवेंट वाटर लॉस एंड स्लाइड्स द स्नो डाउन। जब जो नीडल लाइक इसकी लीव्स होती हैं, उससे क्या होता है कि इसकी जो वाटर लॉस की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। यहाँ से जो वाटर से लॉस होता है ट्रांसपायरेशन के रूप में, दैट बिकम्स लेस, वाटर लॉस कम हो जाते हैं यहाँ से, ठीक है। और जो स्नो है उसको स्लाइड डाउन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज एनिमल्स हैव थिक फर। यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, क्योंकि ये कोल्डी रीजन होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड होती है यहाँ पे, तो जो एनिमल्स होते हैं दे हैव द थिक फर। उनके अंदर क्या होती है, फर होती है। थिक मीन्स मोटी मिही जो बाल होते हैं उनकी एक लेयर होती है जो उसको क्या करती है, उनकी बॉडी को वार्म रखती है, मीन्स कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है। एनिमल्स हाइबरनेट और मूव टू द वार्मर प्लेसेस। जब यहाँ पे ज्यादा ठंड बढ़ जाती है तो या तो एनिमल्स क्या कर जाते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं। इट मीन्स दे गोस लॉन्ग विंटर स्लीप। हाइबरनेशन मीन्स विंटर स्लीप, लॉन्ग विंटर स्लीप। तो वो या तो लंबी विंटर स्लीप में चले जाते हैं, हाइबरनेट कर जाते हैं, या फिर किसी दूसरे गर्म जगह पे चले जाते हैं, ओके। एंड हैव व्हाइट कलर टू कैमोफ्लेज विद स्नो। और उनका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। कैमोफ्लेज होता क्या है, इट इज द कैपेसिटी और द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव और टू चेंज इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू इट्स एनवायरनमेंट। जो एडेप्टेशन होती है दैट इज द परमानेंट, ओके, बट इट इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मीन्स जैसे जहाँ पे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज कर लेते हैं अपने आप को। कैमेलियन, दिस इज एन एनिमल विच चेंजेस इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सिचुएशन। जब इसको जैसी सिचुएशन आती है तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है, दैट इज नोन एज कैमोफ्लेज।
और जो लीफ इंसेक्ट्स है वो ऑल्सो shows the camouflage. It means they are changing their situation. Zebra होता है, zebra also shows and camouflage. zebra होता है वो भी क्या शो करता है, camouflage शो करता है. ठीक है. नेक्स्ट इज इन ग्रासलैंड एरियाज. ग्रासलैंड के अंदर क्या क्या एडेप्टेशन होती है एनिमल्स के अंदर. तो जो हार्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे डिपेंड्स ओनली ऑन द ग्रास. किस पे डिपेंड होते हैं, ग्रास. और टू कट द ग्रास एंड टू च्यू द ग्रास दे हैव द स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड टीथ. उनके जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होंगे और ब्रॉड होंगे ग्रास को काटने के लिए और उसको चबाने के लिए. लॉन्ग ईयर्स टू डिटेक्ट द प्रीडेटर. उनके लंबे कान होते हैं जिससे वो किसी भी प्रीडेटर का पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर है प्रीडेटर. ओके. लॉन्ग लेग्स विद हूफ. उनकी जो लेग्स होती है वो लंबी होती है और उसके जो हूफ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनको तेज दौड़ने में हेल्प करते हैं. दे हेल्प इन द फास्ट रनिंग. ओके. नेक्स्ट इज आईज ऑन द बोथ साइड. उनकी जो आईज होती है बोथ साइड होती है, हेड के दोनों तरफ होती है ताकि वो सही सिचुएशन में स्टिक, किसी भी प्रीडेटर के स्टिक सिचुएशन को, लोकेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. उनके जो प्रीडेटर होते हैं उनकी लोकेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, उनके मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं. ओके. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेप्टेशन इन द बोरियल फॉरेस्ट एंड द ग्रासलैंड एनिमल्स. ओके. नेक्स्ट आते हैं डेजर्ट.